Ramzan Roza Iftar arrangement is being managed by All India Memon Jamaat Federation from the 3rd of April 2022 in Beg Muhammad Park, Narayan Dhuru Street, Mumbai. Started with 300 iftar parcels on first Roza, gradually increased as per crowd and now reached up to 700 persons on daily basis. The said Dawat-e-Iftar is open for all irrespective of caste, creed or religion. No one has asked their religion or sect. Most of the participants are women visiting Nakhuda Mohalla, Paidoni for Ramadan, Eid shopping, trading. On Friday the 29th of April 2022, following dignified police officers visited aforesaid IFTAAR at 6:30 p.m. Additional CP, Mr. Dilip Sawant, DCP Mr. Nilotpal, ACP Mr. Sameer Sheikh, Senior Paidoni Police Station Mr. Shrikant Rajaram Patil, Mr. Mangesh Bhoi. Hangal Police Commissioner of Mumbai Shri Sanjay Pandey could not able to attend due to certain unavoidable circumstances emergencies. Other following dignitaries were also present: MLA Mr. Raj Purohit, Spokesperson Aam Aadmi Party Preeti Sharma Menon, President All India Mili Council Mr. Rashid Azim, Mr. Imran Fruitwala extended warm welcome and greeted all the guests individually with their names. Mr. Nizamuddin Rain emphasized about the spirit of Roza and its spiritual and health-related importance among mankind. Mrs. Razia Bai Kazmawala delivered welcome address and briefed the activities of AIMJF. Mr. Iqbal Memon officer felicitated aforesaid all the dignitaries with shawl and thanked them for their kind courtesy visit to witness the said occasion of communal peace, prosperity and harmony. कमिश्नर यहाँ पर आ चुके हैं, डीसीपी यहाँ पर आपके यहाँ बैठे हैं, एडिशनल अपने एसीपी बैठे हैं, पाईदुनी के सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, जिन्होंने रात दिन कोविड के अंदर मेहनत की। इन्होंने ना अपना दिन देखा ना रात देखा, हमारी सेवा के लिए ये लोग तैनात थे। इनके लिए एक क्लिप की तरह ताली बजा दीजिए। He always said, the be it your sister, your daughter, wife or friend or mother, make their life more meaningful by supporting them in achieving their dream. It is making us achieve our dreams. Some of the projects which might be of your interest, sir, which I want to say about all India Bank. First project which will be of your interest is the POW. That is, water cooler was installed at Azad Maidan for all people without any discrimination. Thousands of protesters and police officers who are deputed for security over there are deriving benefit of safe POW, that is the water cooler from Azad Maidan. The second project which will be of your interest is the Dongri Children Home. In Dongri Children Home, where you keep underage criminal children, we have started training center there, where just imagine the children who would have come out as a criminal from there. Now they will train up in income generating courses and they will come out as a better human being. मैं इस एरिया में 40 सालों से चुन कर आता हूँ, मुस्लिम एरिया से चुन कर आता हूँ। और इनको मालूम है, पिछले एक चुनाव के पहले हमारे मुस्लिम भाई मेरे सामने खड़े थे, 3-3, 4-4 बार के एमएलए थे। किसी मुस्लिम समाज ने मुझे 16,800 वोट दिए और जो मुस्लिम समाज का भाई जो 3 बार एमएलए था उसको 3,600 वोट दिए। ये हृदय में मैं अन को बीच में रख के बोलता हूँ, मैं दिल से नहीं बोल रहा हूँ, भावना से नहीं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। सर अपन हाथ बढ़ाएंगे तो सामने वाला हाथ बढ़ाएगा, सामने वाला हाथ कब बढ़ाएगा? और मैं बोल रहा हूँ जक मार के, अभी टीवी को चैनल पर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अभी आप नोट जरूर कर लेना, जक मार के साथ में रहना पड़ेगा। आप गरीब से रहो, मजबूरी में रहो, खुशी में रहो या मर के रहो, साथ में तो रहना ही पड़ेगा। हमारा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का मकसद हमेशा यही होता है कि एकता भाईचारा, इसका हम पैगाम देते हैं। और हम जो काम करते हैं सोशल काम, वो भी हमारा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो काम करती है वो एकता और भाईचारे का और सार्वजनिक काम करती है। हम कभी भेदभाव नहीं देखते, हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं देखते। उसके तहत ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मैदान है, यहाँ पर रमज़ान में इफ्तारी में 500 से 700 लोग इफ्तारी यहाँ पर करते हैं। और हमने सोचा कि एक इफ्तारी ऐसी की जाए कि सरगर्दा लोग, बॉम्बे के चुनिंदा लोग
वो पुलिस ऑफिसर हो, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की हम लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। समाजी शख्सियत है, उनको बुलाया जाए और एक इफ्तार पार्टी ऐसी रखी जाए, एकता और भाईचारे का माहौल बने, जिसके अंदर हमने सारी पार्टी के लोगों को बुलाया, कांग्रेस के लोगों को भी बुलाया, बीजेपी के लोगों को भी बुलाया, आप पार्टी के लोगों को भी बुलाया, शिवसेना वालों को भी बुलाया। सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। एकता और भाईचारे का एक मैसेज यहाँ से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से दिया गया कि हम जो हिंदुस्तानी हैं वो हिंदुस्तान के अंदर एक बड़े जो सियासतदान हैं बीजेपी के, बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कबूल किया कि हिंदुस्तान के अंदर सबको मिल कर के रहना पड़ेगा। अगर ये कोई कह दे कि चाहे एक ही पार्टी या एक ही मजहब के लोग ही यहाँ रहेंगे हिंदुस्तान में, तो ये नामुमकिन है। उन्होंने खुद तस्लीम किया ये बात। राज पुरोहित जी अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने रोज़ा इफ्तार का एक गेट टुगेदर होस्ट किया था और इसके अंदर हमारे जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो गेस्ट थे वो थे हमारे मुंबई पुलिस के दिग्गज लोग। हमारी मुंबई पुलिस जो कि बहुत एक्टिव मुंबई पुलिस है और मुंबई पुलिस जो हमेशा बहुत सपोर्ट करती है। आज इसलिए अपना बॉम्बे जितना मुंबई बहुत सेफ है बिकॉज मुंबई पुलिस बहुत एक्टिव रोल निभाती है। तो हम बहुत फॉर्चुनेट है कि मुंबई पुलिस के जितने भी दिग्गज है वो आज यहाँ आए, हमारे साथ यहाँ पर इफ्तारी किए, हम बहुत खुश हुए। उसके साथ साथ और भी अलग जैन समाज से लोग आए थे, फिर हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग आए थे, हर कोई हमारे साथ यहाँ इफ्तार किया। ये हमारे को बहुत एक फॉर्चुनेट फील होता है कि हमारे साथ सब मिलकर जुलकर इफ्तार किए। बिकॉज हमारा तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सबको मिलकर रहना है, यूनिटी में रहना है, यूनिटी में काम करना है और यही हमारा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का भी एक मैसेज है। हम जब भी कुछ भी काम करते हैं हम विदाउट एनी कास्ट क्रीड और रिलीजन बस अच्छा काम है वो करना ही है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जिसमें हम हर किसी के लिए काम करते हैं बिकॉज हमारे को ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। बहुत अच्छी दावत से नवाजा, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मेमन साहब की खासकर शुक्रगुजार हूँ, इकबाल मेमन अफसर साहब। वो पूरे शहर के लोगों को जोड़ के रखते हैं। मेमन जमात को पूरे दुनिया में उन्होंने जोड़ के रखा है, लेकिन मुंबई के सारे नागरिकों को भी वो जोड़ के रखते हैं। सब लोगों के साथ उनका भाईचारा, उनकी एक अमन का संदेश हमेशा वो देते रहते हैं। आज भी बहुत खूबसूरत इफ्तार हुई यहाँ पे, बहुत आला अफसर आए, बहुत सारे मुंबई के लोग आए और मिलके हमने अभी साथ में खाना खाया है और सबने मिलके दुआ की है कि हमारे सुंदर शहर में अमन शांति बनी रहे। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक और आने वाली ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी ये नहीं चाहता को आपस में बंटवारा करें और आज जिन मेहमानों ने यहाँ अपनी बात रखी उन्होंने भी यही बात कही कि हम किसी भी हाल में इस देश में एक रहना चाहते हैं। अभी इकबाल भाई का जो टीम है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, आप देखिए यहाँ 500 से 1000 लोग जो बाहर से आते हैं वो रोज़ यहाँ इफ्तार करते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, लेकिन अल्लाह इस काम को उनसे उनकी टीम से ले रहा है, तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। तरफ से हमारे इकबाल मेनन जी हैं जो ऑल इंडिया मेनन जमात के हैं, उन्होंने आज अच्छी तरह से इफ्तार पार्टी दी जहाँ हर कौम के आदमी आए, सब मिले और इसी तरह से हम यहाँ अमन की शांति की कोशिश करेंगे और इसी तरह से हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा हो रहा है उसको हम स्टॉप करेंगे। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।